یہ عجیب منطق ہے نا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے علم شریف ہو تو امت کا تو بھلا ہی بڑا ہے. آپ نے مسلم شریف کی حدیث لکھی ہے دولت المکیہ میں. نبی کریم نے فرمایا جب دجال آئے گا نا تو میرے کچھ غلام گھوڑوں پہ چڑھ کے اسے قتل کریں گے. قربان جاؤں محبوب کے انداز گفتگو پہ. حضور فرمانے لگے وہ جو میرے غلام اسے قتل کریں گے نا میں ان غلاموں کے نام جانتا ہوں. فرمایا میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں. فرمایا میں ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں. محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جائیں. حضور فرمانے لگے جن گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ جہاد کریں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں. تو پھر بریلی کے امام بول پڑے کہنے لگے اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا. اور جب خدا ہی نہ چھپا رہا تم پر کروڑوں درود. اور مرحوم آدم چشتی نے کہا تھا ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی. دم بیضا کی کلیم اللہ کو طاقت بخشی. ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی. دوست اعلیٰ حضرت نے نا ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی عزت کو بیان کیا, حضور کی تعریف کو بیان کیا. چودھری صاحب کی جو بندہ تعریف کرتا ہے نا چودھری صاحب کی, چلے چودھری کو رہنے دیتے ہیں اوپر چلتے ہیں. جو پارٹی کے صدر کی وزیر اعظم کی تعریف کرتا ہے وہ منسٹر بن جاتا ہے. یہ تو ہم سے پتہ ہی نہیں جی میں اس گل کا. جو وزیر اعظم کی تعریف کرتا ہے وہ کیا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جو زیادہ اچھی تعریف کرے وزارت بڑی. او بھائی بڑے کمزور نہیں وہ لوگ جو حضور کی تعریف کر کے 20-25 ہزار مانگتے ہیں؟ بڑے کمزور نہیں. اور وزیر اعظم کی تعریف کرنے والا منسٹر بن جاتا ہے, محمد عربی کی تعریف کرنے والا اعلیٰ حضرت بریلوی بن جاتا ہے, نبی کریم کی تعریف کرنے والا فاضل بریلوی بنتا ہے, حضور کی تعریف کرنے والا. اتنا چھوٹا سا تیرا لالچ ہے 20,000 چھوڑ. اعلیٰ حضرت نے خودداری سے وقت گزارا, عزت نفس بڑی تھی. آپ یقین کریں ان کا قلم بھی وقار والا, گفتگو بھی وقار والی, لب و لہجہ بھی وقار والا. پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں پر بات آئی ہے تو کر دیتا ہوں, ناراض نہیں ہونا آپ لوگوں نے. وعدہ کرتے ہو؟ چلو نہیں کرتے اسی کوئی اور کر لیں گے. آپ ہاں نہیں نہ کر رہے, کر دوں بات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو تم پوچھتے ہو نا سیدوں کو زکوٰۃ دے لو, عالم کو کھال لگ جاتی ہے مدرسے میں, فرماتے ہیں یہ کچے لوگوں کی باتیں. جو پکا بندہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے بہترین چیز اپنے نبی کے نام پہ خرچ کرتا ہے. کچی پکی باتیں ہیں یہ جو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور اعلیٰ حضرت نے چندہ بھی نہیں مانگا ساری زندگی. منظر اسلام مدرسہ آج بھی چھوٹا سارا ہے. فرماتے تھے جو دوں گا جیب سے دوں گا, اور میں مدرسے کے بچوں کا وکیل ہوں, مدرسے کے بچوں کا وکیل ہوں. مجھے پتہ ہے ان کے ساتھ جو اشر کیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح کے کپڑے اپنے پوتے کو لے کے دیتے تھے اس طرح مدرسے کے بچوں کو بھی لے کے دیتے تھے. یہ مزاج تھا فاضل بریلوی. اور خودداری, عزت نفس, وقار. جب تک دین بکتا نہیں نا تو دین کی قدر بھی ذرا اونچی رہتی ہے, اور جب یہ بکنے لگ جاتا ہے نا تھوڑا تھوڑا سیل ہونے لگ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرید ملنے آ گیا. اعلیٰ حضرت کے تعویذ میں بھی بڑی جان تھی. آپ کا کیا خیال ہے تعویذ صرف وہ لکھ سکتا جسے بسم اللہ نہ آئے؟ بابا جی سرکار تعویذ بھی کسی عالم سے لکھوایا کرو تاکہ اس میں کوئی شرکیہ بات نہ آ جائے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا, کہنے لگا حضور میری دکان کے سامنے نا ایک بد مذہب کی دکان ہے پانوں کی, پان بیچتا ہے وہ. اب یہاں سے یہ دلیل بھی نہ لے لینا کہ پان کھانا جائز ہے, اگرچہ کچھ پان ایسے ہیں جن کے جواز کا فتویٰ علماء دیتے ہیں, لیکن آج کل جو کچھ آپ پان میں ملا کے کھاتے ہیں نا اس سے پناہ ہی مانگنی چاہیے. پان بیچتا تھا وہ. تو اعلیٰ حضرت کے پاس کہنے لگا حضور سامنے بد مذہب کی دکان ہے اور ادھر میری ہے, تو گاہک سارے ادھر جاتے ہیں. حضور میں مسلمان ہوں, اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دیتا ہے تو میں مسلمانوں پہ تقسیم بھی کرتا ہوں, تو حال کوئی بھی نہیں. اعلیٰ حضرت اسے تعویذ لے کے دیا. توجہ ہے میری بات پہ؟
तावीज़ लिख के दिया, फरमाया गले में रख लो, अल्लाह खैर करेगा। तो जिस गले में पैसे नहीं होते, जिसकी चाबी कभी गुम नहीं होती, वो हमेशा लोग संभाल के रखते हैं, वो कहा वो गले में रख लो। उसने रख लिया। वो कहता है लाइनें लग गई, यानी मुझे 2-3 और बंदे बिठाने पड़े, मौज बन गई, कमाल हो गई। कहते हैं मेरा बेटा एक दिन कहने लगा, यार आला हज़रत ने कहा था खोल के देखना नहीं। ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, इनके दिलों में, इनके हाथों में अल्लाह लोगों के दिल दे देता है, खोल के देखना नहीं। उसने कहा जी ठीक है नहीं देखते। एक दिन उसके भाई ने कहा यार, और इंसान की फितरत है, इसे कहा जाए ना वला तक़रबू हाज़िही शजरा, तो ये थोड़ा थोड़ा कहता है पता तो करूँ उधर है क्या, मिजाज है ना। तो कहा नहीं देखना। तो उसने कहा नहीं खोल के। ये अभी हज़रत साहब बड़ी मोहब्बत कर रहे थे कि ज़रा मेहरबानी फरमाना, पीर साहब को रास्ता दे देना। तो अल्लाह खैर करे, नहीं देते लोग रास्ता, उनकी बड़ी, और जितना आप कहना पीछे हट जाओ उतना आगे हट जाते हैं। यानी आप कहते जो पीछे हट जाओ तो फिर इसका माना है कि अब नहीं हटना। मेहरबानी किया करे, कभी कभी ऐसी मुश्किल भी होती है, ये है कि ज़रा कह दिया जाए ना ये काम ना करना, फिर उसके बाद फिर तो बंदे तैयारी कर लेते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि अब ये किस किस तरह करके करना है। आला हज़रत ने मुरीद को कह दिया खोल के देखना नहीं लिखा क्या है। उसने अपने भाई से कहा, बेटे से कहा खोलना नहीं। उन्होंने कहा देखो तो सही क्या लिखा है। एक दिन उसने खोला तो लिखा पता क्या था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और नीचे लिखा था मुसलमानों पान यहाँ से ख़रीदा करो। और नीचे लिखा था फ़कत अहमद रज़ा का बरे। ऐसे अल्लाह ने दिल मोड़ दिए, उनके मोड़ दिए। अब किसी पीर का एक तावीज़ चल जाए ना तो अल्लाह खैर करे, फिर दुकान भी सही चल जाती है, सही दुकान चलती है, फिर तो अल्लाह खैर करे गाहकों की लाइनें लग जाती हैं, फिर तो टोकन देने वाले बंदे भी बैठ जाते हैं, वो भी बैठ जाते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के तावीज़ में बरकत थी। लोग आते थे तो एक मुरीद एक दिन आया तो वो पेड़े, अब तो मिठाई के डब्बे होते हैं ना, पेड़े लाया। उस वक़्त हंडिया में पेड़े रख के लोग लाया करते थे, मक्खन के पेड़े बनाते, जिस तरह आज आप मिठाई लेके जाते। उसने जाके रखी, हज़रत कबूल कर लें, फरमाया कोई हुक्म? कहने लगा कोई नहीं, ज़ियारत के लिए आया था। कोई बात? कहने लगा हुज़ूर कोई नहीं, फ़कत ज़ियारत। ये तो आपने एक तालिब इल्म से कहा कि अंदर घर में दे आओ, वो घर में देने चला गया। बाद में वो कहने लगा हुज़ूर एक तावीज़ चाहिए था बच्चे के लिए। आप फरमाने लगे मैंने तो तुम्हें कहा था कोई बात हो तो बताओ। तुमने कहा ज़ियारत के लिए आया हूँ। उस तालिब इल्म को दोबारा बुलाया, फरमाया वो पेड़े वाली हंडिया उठा के ला, देख किसी ने चखा तो नहीं उसमें से। वो गया वापस आया, कहने लगा हुज़ूर किसी ने चखा भी नहीं। आला हज़रत ने तावीज़ लिखा, तावीज़ दिया और हंडिया दी। फरमाया ये पेड़े अपने वापस ले जा, अहमद रज़ा तावीज़ बेचा नहीं करता। करुमद है अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा नाम। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खुददारी से, वक़ार के साथ, वक़ार, सारी ज़िंदगी सेठों नवाबों से ताल्लुक़ नहीं बनाया। पता क्या है, जब अमीर लोग, जब फ़कीर लोग भी अमीरों से ताल्लुक़ बनाने लगते हैं तो गरीब बेचारे फिर पसमानदा रह जाते हैं। जब पीर साहब भी किसी अमीर का माथा चूमते हैं ना, चलो उनकी नीयत अच्छी होगी कि चंदा देगा, मदरसा बनेगा, कौन सा ज़ात के लिए मांगते हैं, लेकिन गरीब पिस जाता है। मिलाद की महफिलें आएंगी ना तो जो इश्तिहार छपवा के देगा वो स्टेज पे बैठेगा, तो जो बेचारा मस्जिद में झाड़ू देता है वो यहाँ भी परेशान रहेगा कि यार मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। आला हज़रत ने सारी ज़िंदगी नवाबों सेठों से ताल्लुक़ नहीं रखा। एक नवाब साहब ज़बरदस्ती मिलने आ गए। जब वो दरवाजे पे पहुँचे तो मेरे आला हज़रत ने यूँ करके दरवाज़ा पकड़ लिया, फरमाने लगे नवाब साहब फ़कीर के घर में चटाइयाँ हैं, इस पे तालिब इल्म बैठ के पढ़ते हैं, ना आपके बिठाने को कुछ सोफ़ा है और ना मुझे नवाबों के आदाब आते हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो आप भी अपना काम करें और फ़कीर को भी कोई दीन का काम करने। सारी ज़िंदगी करीब निपट। और याद रखें खुददार आदमी की ज़िंदगी बड़ी जानदार होती है। फिर आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अकायद का तहफ़्फ़ुज़ किया है। इतना अकीदा रिसालत अगर किसी का पक्का नहीं, अदब वाला नहीं जितना आला हज़रत का है, तो अकीदा तौहीद भी किसी का इतना पक्का नहीं।
आला हज़रत के पास ना एक मौलाना तशरीफ़ लाए, वो सितारों का इल्म जानते थे। तो आला हज़रत फरमाने लगे, मौलाना क्या बताते हैं सितारे, बारिश कब होगी? कहने लगे जी महीना पूरा नहीं होगी। आपको ही पता है, बता जाते हैं वो जो सोना डबल करने आते हैं, वो कह जाते हैं तो फटाफट लोग मान लेते हैं। हाथ की लकीरें भी वो बेचारा अपनी मिटी हुई होती हैं। रोटियां मांगने आता है तो किस्मत का हाल बता के चला जाता है, भाई तेरी अपनी इतनी ख़राब है कि तू मांगता फिर रहा है। और अल्लाह ताला फजल करे, मेरी जमात के लोग ये तो फटाफट कबूल करने को तैयार है। वो बाबा एक आया था, मुझे कह गया, मैंने कहा बाबे की तुझे ज़रूरत क्या पड़ गई, तू छोड़ किन चक्करों में पड़ा है। मौलाना आ गए। वो कई दफ़ा ना हमें भी देहाती लोग बूढ़े मिलते हैं, कहते हैं पीर साहब मेरी किताब काट के दसो भला मैनू की है। तो मैं कहता हूँ किताब तो अल्लाह करे क़यामत में भी हमारी ना ही खुले तो बेहतर है, छोड़ें किताब। कहते कोई हिसाब लगाएं। मैंने कहा कोई हिसाब किताब नहीं, ये क्या कि चक्करों में पड़े हुए। अब तो इस्तिखारे की बड़ी बुरी हालत कर दी है लोगों ने, यानी अभी फ़ोन करो 1.5 मिनट बाद इस्तिखारे का जवाब ले लो। पता नहीं वो किस तरह का ऑटोमेटिक इस्तिखारा है कि जो नाम बताने से फौरी तौर पे पता चल जाता है। पता नहीं मुफ्ती साहब है कोई ऐसा इस्तिखारा 1.5 मिनट में कर लिया जाए, लेकिन हो रहा है। पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बड़े बड़े करीबी रिश्ते लोग तुड़वा रहे हैं, तेरे लिए सही नहीं। खुदा के बंदे बस कर दें। इस्तिखारा इस्तिखारे रहता है, को माज़अल्लाह वही नहीं बन जाती, लेकिन हमारा मिजाज है, जिस रो में बहते हैं बह जाते हैं। करना चाहिए, दुरुस्त है, लेकिन जो रवैये अब इख्तियार हुए ये रवैये नहीं है उसके। समझें और याद रखें। आपने कहा मौलाना बताइए सितारे क्या कहते हैं? कहने लगे जी सितारे कहते हैं महीना बारिश नहीं होगी। तो आला हज़रत फरमाने लगे आप ये कहें कि मेरा इल्म कहता है महीना नहीं होगी, बाकी रब चाहे तो आधे घंटे में भी हो सकती है। वो कहने लगे जी वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन सितारे कहते हैं कि नहीं होगी। आप फरमाने लगे तू तो आड़ ही गया है। मैं कह रहा हूँ कि तेरी बात ठीक है, पर अगर अल्लाह चाहे तो, अकीदा तौहीद है ना। तो वो कहने लगे जी नहीं वो तो ठीक है, पर सितारे, आप किसी को कहें ना तो नमाज पढ़ा कर रोजी में बरकत होगी, तो कहते हैं जी वो भी ठीक है, पर दुकान भी तो ज़रूरी है ना। क्या बात करते हो, इतनी कच्ची बातें करते हो, मुसलमान हो। आला हज़रत फरमाने लगे भाई सितारे ठीक है जो तू कह रहा है, पर अल्लाह चाहे तो। कहने लगा हुजूर आप ठीक कह रहे हैं, पर सितारे कहते हैं महीना नहीं होगा, और ये बात कभी गलत नहीं होती। आला हज़रत ने दलील दी, समझाया, उठे, फ़ौरन जलाल नहीं करते थे। बदमज़हबों पर जब फतवे दिए तो पहले ख़त लिखे, उन्हें समझाया, फ़ौरन नहीं फतवा दिया। यहाँ भी उठे और उनसे पूछने लगे घड़ी पे क्या टाइम हुआ है? कहने लगे 11:15। तो आला हज़रत ने मिनटों वाली घड़ी घुमा दी, फरमाया अब क्या टाइम हुआ? कहने लगे 11:15। 11:15 से 12 हो गए। तो आला हज़रत फरमाने लगे 15 मिनट आगे हो गई ना, 12 बज गए ना। कहने लगी वो तो आपने सुई लाई है। तो फरमाने लगे अगर रब भी सितारे हिला दे तो फिर बारिश हो सकती है कि नहीं? बंदे अड़ जाते हैं, नहीं मानते, नाराज ना होना। जो अड़ जाते हैं वो बहरहाल वो अड़ जाते हैं, वो अड़ गया। कहने लगा हज़रत जी वो भी आपकी बात ठीक है, पर सितारे हिलना और वो लंबी बात है। आप फरमाने लगे तो इस तरह कर दरवाज़ा खोल और बाहर जा। मेरा रब जब चाहे तो बारिश हो जाती है। वो शख्स कहता है मैंने आला हज़रत का कमरे का दरवाज़ा खोला तो बाहर काली कटाएं थी। कहते हैं 20 मिनट गुजरे तो बारिश शुरू हो गई। मैंने जाके कहा हुजूर आपकी करामत